स्टूडेंट्स, आई एम अद्वैता सर। वेलकम, खुशामदीद, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश प्लस पर। टुडे आई हैव ब्रॉट यू न्यू स्टोरी टेकन फ्रॉम सीबीएसई क्लास 9 बुक बिहाइंड चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस चैप्टर में दो पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है वो किंग ऑफ शहनाई बिस्मिल्लाह खान के बारे में है, जबकि आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे और जिसका नाम है इवलिन ग्लेनिज लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। थीम आप समझिए, इवलिन ग्लेनिज लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। थीम ही थोड़ा स्ट्रेंज है कि बिना सुने ही साउंड को सुनना, स्ट्रेंज। तो इससे पहले कि हम इस स्टोरी में जाएं, थोड़ा हम जानते हैं इसके राइटर डेब्रा कॉली, जो कि एक महिला हैं, जो एक लेडी हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। दिस मोटिवेशनल स्टोरी इज रिटन बाय ओटावा बेस्ड फ्रीलांस राइटर डेब्रा कॉली। शी हैज रिटन मोर देन 100 आर्टिकल्स फॉर एन इंटरनेशनल मैगजीन रीडर्स डाइजेस्ट। Deborah Colley has written 16 books in total. A few of them are Cairo, A Practical Guide, The Library Tree, One Woman's Journey, Lucio Tisdale, Just Call Me Brother, and Quest Biography, 35 book bundle, Emma Albani. Now let's read the story by her given to you in class 9. Chapter 2, The Sound of Music. You know, music is how much important and how powerful it is. Once Christian Anderson said, where words fail, music speaks. So you can understand how music is powerful. जब हमारे लफ्ज़ फेल हो जाते हैं, जब हमारे शब्द फेल हो जाते हैं, तो म्यूज़िक बोलता है। तो इससे आप समझ सकते हो म्यूज़िक इज़ हाउ मच पावरफुल. This is part 1 and this is the first subtitle. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Main title is this one and second is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie means able to listen sound without hearing it, means without having the ability to hear. It means the theme reflects itself that something wrong with Evelyn Glennie's hearing power. So, before starting the chapter, the author says he gives a statement. What was his statement is that, see here, God may have taken her hearing. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. Something extraordinary. Right? What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. The author says that if God takes something from us, He gives us in return something extraordinary, and that thing happened with Evelyn Glennie. ईश्वर जब हमसे कुछ ले लेता है तो बदले में हमें कुछ ऐसी विलक्षण प्रतिभा देता है जिसे हमें जानकारी नहीं होती, जिसे हमें डिस्कवर करना होता है। और यही बिल्कुल एवरलिन ग्लेनी के साथ भी हुआ था। और कहते हैं कि ऑथर कहता है कि गॉड ने उससे हियरिंग पावर छीन ली थी, लेकिन उसे कुछ विलक्षण एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें उसे दे दी थी, उसे पुरस्कार के रूप में उसे दे दी थी, उसे नवाजा था। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो कुछ भी हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, एंड जो वह महसूस करती है हमसे कई गुना ज़्यादा हमसे ज़्यादा वो साउंड को महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, एंड दैट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग कि वो म्यूजिक को महसूस करती थी। और यही वजह थी कि वह म्यूजिक को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। रीड द फॉलोइंग
account of a person who fought against physical disability and made her life a success story. Now author says to read the story to a story of a person who fought against physical disability. You know, physical disability is a big issue, but this is not such a big issue which I think or which we think. You know, Napoleon Bonaparte once said that there is no word like impossible in his dictionary, and this thing, his statement, has been proved by Evelyn Glennie. यह जो कहानी है, यह ऐसे इंसान की कहानी है जो फिजिकली डिसेबल था, लेकिन उसने उस डिसेबिलिटी के बावजूद उसने एक सक्सेस स्टोरी बनाई, एंड द पर्सन लेफ्ट अ सक्सेस स्टोरी बिहाइंड हिम in the world of literature, in the world of human being. Now paragraph 1. Rush hour crowd jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train. Rush hours, you know very well. In metros, in big cities, there is a rush hour in the evening, in the morning, when all people rush towards offices, towards shops, towards schools. So lots of people gathered on a platform, on a bus, at bus stop, at bus station. So that is called a rush hour. Many people are there. So it was the rush hour, and people were pushing each other to make way for themselves to take train. At the platform, a slight girl, a little girl who was looking younger than his age, and she was 17 years old, but she was not looking like that. She was looking 15, 16. So she was not looking 17 years old, and she was nervous, but she was feeling nervous. Why she was feeling nervous, we will say it. And she was also, but she was excited. Why she was excited? Because the train was approaching nearer and nearer, and this thing was approaching of train was felt by its vibration. You know it very well, student. Whenever a train comes, the ground starts vibrating. यह रश आवर था, पूरी भीड़ थी. रश आवर क्या होता है? मेट्रो जो बड़े बड़े सिटीज़ में रश आवर होते हैं मॉर्निंग आवर और जो इवनिंग आवर है. मॉर्निंग आवर में जब ऑफिसेज जाने के लिए पीपल भागते हैं, स्कूल जाने के लिए भागते हैं, शॉप पे जाने के लिए भागते हैं, अपनी दुकानें खोलने के लिए, मॉल में जाने के लिए भागते हैं, और फिर शाम को वापस घर आने के लिए सब एक साथ आते हैं, तो वो रश आवर कहलाता है. तो उस अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे, यू नो, हैव यू एवर बीन टू कैलकाटा? देयर इज़ ए अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म. आपने अगर कलकत्ता गया होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है ना. वैसे ही अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था, और वहाँ पे भीड़ जो है एक दूसरे को धक्का दे रही थी, पुश कर रही थी आगे बढ़ने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए. ये पूरा का पूरा आप जस्ट इमेजिन प्लेटफॉर्म पे क्या होता है जब ट्रेन आ रही होती है. चारों तरफ भगदड़ सी मच जाती है, एकदम से एक्टिविटी बढ़ जाती है. वहीं पर एक छोटी सी लड़की थी जो कि अपनी उम्र से कम दिख रही थी. वो थोड़ी नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड भी थी. और क्यों एक्साइटेड हुई? क्योंकि उसने महसूस किया ट्रेन ज़मीन के वाइब्रेशन से कि ट्रेन आ रही है, पास आ रही है, यानी कि स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे पहुंच रही है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म. Why she was nervous? Because it was the first day in Royal Academy of Music, which was in London. It is a very recognized institute, recognized academy for music. So she was going to join it. That's why she was waiting for a train. वह ज्वाइन करने जा रही थी रॉयल एकेडमी को, और इसलिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी. एंड शी वॉज सपोज टू टेक द ट्रेन. एंड वह बिल्कुल एक आम लड़की की तरह, जो एक स्कॉटिश गांव से आई है, स्कॉटलैंड के गांव से एक जो लड़की आई है, वह कैसा डर महसूस कर सकती है पहले दिन बड़े सिटी में कहीं बड़े एकेडमी में जाने के लिए. बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही थी.
जब यहाँ पर भी आपने महसूस किया होगा, जब आप गांव से शहर की तरफ आते हैं और फर्स्ट डे कोई भी स्कूल होता है, नए लोग, नए टीचर्स, नए स्टूडेंट्स, नए कलीग्स, उन सब को सोचकर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा, ये सब सोच करके थोड़ा नर्वसनेस फील करते हैं और फिर हम एक्साइटेड फील करते हैं कि सब कुछ नया होता है। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन the aspiring musician, aspiring means having a strong desire to become something. So aspiring musician, it means Evelyn Glennie was a aspiring musician, and she had faced till now, till today, bigger challenges, bigger problems than most of the people faced. Why? Because she was profoundly deaf. She was completely deaf. Right? And earlier we have talked about it. Physical disability. Right? This is the physical ability she was facing, and she was deaf. Come to second stanza. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. Evelyn Glennie's Evelyn Glennie was not deaf since her birth. She had lost her hearing gradually. तो उसने छुपा तो लिया था, लेकिन हुआ क्या? But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. उस टाइम जब उसने छुपा तो लिया था, लेकिन धीरे धीरे जब वो 11 साल की हुई तो देखा क्या कि उसके मार्क्स जो हैं बहुत ही पुअर हैं, और इस बात से परेशान होकर हेडमिस्ट्रेस ने क्या किया, उसके पेरेंट्स को बुला भेजा और कहा कि एवर्लिन को स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, आप उसे उसके पास ले जाइए. एंड इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. एंड when she was taken to a specialist, that was the time when parents came to know that she was severely impaired. She has lost. What she has lost? Hearing due to gradual nerve damage. जो धीरे धीरे नर्व डैमेज हो रहा था, उसकी वजह से उसकी जो हेयरिंग पावर थी वो खत्म हो रही थी. There were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. And they were advised, उसके पेरेंट्स और खुद एवर्लिन भी एडवाइस दी गई, स्पेशलिस्ट के द्वारा एडवाइस दिया गया उसे कि इसे हेयरिंग एड्स यू नो स्टूडेंट, एक हम कान में लगाते हैं, एयर में लगाते हैं, जो बहरे लोग होते हैं ना, जो डेफ पीपल होते हैं वो लगाते हैं ताकि वो सुन सकें. ये आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है. तो उसने कहा कि इसे इसकी ज़रूरत है, इसके लिए फिट है अगर ये लगाएगी कान में हेयरिंग एड्स के साथ, और इसे डेफ के स्कूल में, जो स्कूल बहरों के लिए बने हुए हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए बने हुए हैं, उसे स्कूल में इसका दाखिला करा दिया जाए. अब जब उसने सुना एवर्लिन ने, तो सब कुछ उसके सामने ब्लैक हो गया. इट वॉज लाइक अ ब्लैक स्क्रीन बिफोर हर आईज. द वर्ल्ड वॉज ब्लैक, नथिंग वॉज देयर. बट Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest of music. But Evelyn was Evelyn. She was not going to give up. She was not going to surrender. वो एवलिन तो एवलिन थी. एवलिन क्या थी? वो तो एवलिन थी, वो कॉमन पीपल नहीं थी. उसने गिव अप करने को नहीं सोचा. उसने डिटरमाइंड की, फैसला लिया, दृढ़ निश्चय किया कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी और म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट है उसे जारी रखेगी. वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन क्या हुआ,
शी सॉ ए गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन. जाइलोफोन इट्स ए काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. उसने देखा कि एक छोटी सी एक लड़की जो है वो जाइलोफोन उसे प्ले कर रही है, तो उसने डिसाइड किया कि यस, अब मैं यही सीखूंगी, इसे प्ले करना मैं सीखूंगी. पहले वो क्लियर नहीं थी. म्यूजिक में इंटरेस्ट तो था, लेकिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करना चाहती है पहले वो कंफर्म नहीं थी. लेकिन जब उस लड़की को उसने देखा तो वह कंफर्म हो गई. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by turning two large drums to different notes. क्या हुआ जब टीचर्स को पता चला, when teachers came to know that she wished to become a musician, she wished to play a xylophone, all teachers discouraged her. But there was one great teacher, there was one great musician who was a percussionist, and he was a Ron Forbes. कौन था वो? Ron Forbes था, who has discovered, who has identified the potential, जिसने एवर्लिन के पोटेंशियल को, अंदर की शक्ति को उसने क्या किया था? पहचान लिया था. एंड ही स्टार्टेड टू ड्रम्स बाय ट्यूनिंग टू डिफरेंट नोट्स. उसने क्या किया? उसने 2 ड्रम लिया, दोनों को अलग अलग नोट्स पे सेट किया और फिर उसने उसे बजाना शुरू किया. और उसने कहा, क्या कहा? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपनी कानों से मत सुनो. डोंट ट्राई टू लिसन योर ईयर्स लाइक अदर पीपल बिकॉज यू आर डेफ. You have to go, you have to do it in a different way. Try to sense it some other way. क्या कहा उसने? कि you have to listen, you have to sense the sound of the drum of 2 different notes which was set on 2 different notes. जो अलग अलग नोट्स पे 2 ड्रम सेट थे. रॉन ने कहा कि इसे तुम किसी अदर तरीके से महसूस करने की कोशिश करो. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. All of a sudden she realized, वो कहती है कि मैंने महसूस किया कि मैं वेस्ट के ऊपर, कमर से ऊपर जो है वो हायर नोट के ड्रम को महसूस कर सकती है और कमर के नीचे लोअर नोट पे बज रहे ड्रम को महसूस कर सकती थी. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes कहते हैं, Forbes ने उस एक्सरसाइज को क्या किया? उसने कंटिन्यू किया, बार बार उसे किया और जल्द ही, बहुत जल्द एवलिन को यह महसूस हुआ, उसने डिस्कवर कर लिया कि वह कुछ सर्टेन नोट्स जो है अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में महसूस कर सकती थी. I hadn't learned to open my mind. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. और उसने दिमाग को और बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन के लिए बिल्कुल ओपन करना सीख लिया था कि कैसे बॉडी के और दिमाग को ओपन करते हैं साउंड के लिए. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और जो कुछ भी हुआ उसके बाद वह नतीजा था एवर्लिन के डिटर्मिनेशन का, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का और हार्ड वर्क का. She never looked back from her point, and from that day, she never looked back. उस दिन के बाद से उसने पीछे नहीं मुड़ के देखा, वह आगे बढ़ते गई और आगे बढ़ते गई. और क्या किया? मात्र 16 years old में she toured the kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, और जब वह 16 years की थी तो उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया एक ऑर्केस्ट्रा के, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ एंड नाउ शी हैड डिसाइडेड कि यस, आई विल बी अ म्यूजिशियन, आई विल मेक माई करियर इन म्यूजिक एंड म्यूजिक इज़ माई लाइफ. म्यूजिक ही मेरी ज़िंदगी है, संगीत ही मेरी ज़िंदगी है और इसका मुझे मेरा करियर इसी में बनाना है. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम a musician, she auditioned for the Royal Academy. और उसने क्या किया? जो लंदन का सबसे फेमस रॉयल एकेडमी है म्यूजिक का, उसने ऑडिशन दिया और एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. जो ऑडिशन दिया उसके बाद जो कुछ हुआ वह एक हिस्ट्री था, क्योंकि उसने इतने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे उस ऑडिशन में कि
कि रॉयल एकेडमी के इतिहास में पहले किसी और ने नहीं किया था। एंड शी धीरे धीरे शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे जो ऑर्केस्ट्रल वर्क में जो सबके साथ एक समूह के रूप में काम करती थी, धीरे धीरे सिंगल परफॉर्मेंस जो है सोलो जिसे परफॉर्मेंस कहते हैं, उसने सोलो परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। हर मदर रिमेंबर्स द मोमेंट द डे व्हेन शी वाज 8 years old and she was waiting to play the piano on a stage, but she was showing no movement when she was called. When she was called, यह जन्मजात वो बहरी नहीं थी, वह सुन सकती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने उस श्रव्य शक्ति को, सुनने की शक्ति को उसने गंवा दिया था। हर मदर, उसकी माँ याद करती है उस दिन को, उस पल को जब वो 8 साल की थी और जब वह पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, लेकिन उसका नाम बुलाया जा रहा था, पुकारा जा रहा था, लेकिन वो सुन नहीं पाई। आई सडनली रियलाइज, हर मदर सेड दैट, हर मदर सेड आई सडनली रियलाइज, आई सडनली केम टू नो शी हैडंट हर्ड द कॉलिंग, वह जो पुकार को सुन नहीं पाई थी। Says Isabel, and who was Isabel? Isabel Glennie was her mother. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For some time, Evelyn managed to hide her problem, hide her physical problem, physical disability. And what was the physical disability? ग्रोइंग डेफनेस, जो उसकी बहरापन था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और वो अपने दोस्तों से, अपने टीचर से छुपाने में किसी तरह मैनेज कर रही थी। What happened next was next part of the story in the next video. Thank you so much for watching the video.